कि अगर मैं एक बॉडी लेता हूं, लेट्स से आई एम कंसीडरिंग ए बॉडी लाइक दिस, ओके बेटा, एंड दिस इज ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, लेट्स से दिस इज परफेक्टली रिजिड बॉडी, इस पर एक फोर्स लगा दूं तो क्या होगा? इफ आई अप्लाई वन फोर्स ऑन द बॉडी, व्हाट विल हैपन? बोलो, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ बॉडी? रेस्ट और मोशन? जाहिर सी बात है मोशन कर जाएगी। कैसे मोशन करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी डूइंग प्योर ट्रांसलेशन, भाग जाएगी इस तरीके से, ठीक है। नाउ इफ आई अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हेयर, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, इफ दिस बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, देन व्हाट विल हैपन? नो मोशन इज देयर, no motion, and there will be no deformation. In this case there will be beta no motion, no motion and no deformation, no motion no deformation, ठीक है, कुछ नहीं होगा, परफेक्टली रिजिड है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया आपने। Now if I apply here, let's say 10 Newton F1 and this side I apply 5 Newton F2 force, now what will happen? Motion will be there, motion will be there and deformation will not be there, deformation will not be there because body is rigid. So here only one possibility is there, either body will be in rest or motion, but deformation cannot be there, deformation cannot be there. So here there are only two possibilities, that either body will be in rest or body will be in motion, but there is no possibility of deformation. क्या यहाँ डिफॉर्मेशन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। रेस्ट हो सकता है, मोशन हो सकता है, डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है बिकॉज बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। अभी दूसरा बॉडी लो, दूसरा बॉडी लो, मान लो ये दूसरा बॉडी है एंड दिस इज डिफॉर्मेबल बॉडी, दिस इज डिफॉर्मेबल बॉडी। बेटा डिफॉर्मेबल बॉडी पर अगर मैं एक फोर्स लगाता हूं, लेट्स से F1 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, व्हाट विल हैपन? बताओ, रेस्ट और मोशन? रेस्ट और मोशन, मोशन हो जाएगा, हो जाएगा, रेस्ट में तो नहीं रहेगा। एक फोर्स लगाया हुआ है, डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं? यस और नो, जवाब दो। Single force applied on the deformable body 10 Newton, what will be about deformation? मोशन तो होगा पक्का, डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो बेटा। यस और नो। स्पेस में है तो मोशन होगा, हाँ मोशन तो होगा। when nothing is attached, when nothing is attached with the body means it will be feeling like it is in space, खाली space है, nothing is there, when nothing is attached with the body, so body is free in the space, it can move freely like this, okay, friction नहीं लगे, इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। वेयर इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन विल कम फ्रॉम अदर सरफेस, देयर इज नो कनेक्शन, नो अदर बॉडी, ठीक है। सो इट when nothing is attached means automatically this body will be assumed in the space, so there will be no deformation by the single force, strength पे depend नहीं करेगा, there will be no deformation, single force cannot deform the body, single force cannot deform the body, single force cannot create the stress, ठीक है, not strain. Now if you will apply beta equal and opposite force here, let's say you are applying here F2 equal to 10 Newton, now what will happen? It will be in rest and there will be deformation also, motion will not be there, getting point or not? So only deformation is there, you can only do study of the deformation, you can do only study of deformation, you don't need to study about motion, what the point or not? But last case, if I apply here unbalanced force like this side 50 Newton and this side 10 Newton, now what will be there? Not rest, it will be motion plus deformation. Now you have to study about both, now you have to study about both, motion का भी study करना है, deformation का भी study करना है, the problem will be very complex,
पूरा इसका मोशन स्टडी करें या इसका डिफॉर्मेशन स्टडी करें, बोथ आर हैपनिंग टुगेदर, प्रॉब्लम विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। इट कैन बी देयर, ऐसा क्वेश्चन मतलब बन सकता है, लेकिन कभी सॉल्व किया क्या? कभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोशन पढ़ा क्या? कभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोशन पढ़ा क्या अपन ने कभी? हाँ, वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि शाफ्ट पे टॉर्क लगा है, इतना आरपीएम से घूम रहा है, वो एक डिफरेंट केस है, बट मोशन नहीं पढ़ते सोम में कभी, और वो भी एक्चुअली में मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैकेनिक्स में वी विल नॉट स्टडी अबाउट द डिफॉर्मेशन, एंड इन द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वी विल नॉट स्टडी अबाउट द मोशन। मोशन का स्टडी सेपरेट, डिफॉर्मेशन का स्टडी सेपरेट, ओनली देन वी कैन solve the problems in our syllabus, okay, otherwise problems will be very complex, okay. So that's why these separate subjects are made, got the point or not? So this is what can happen to a body, rest, motion or deformation. By this figure now you will understand, okay. So they will not give you the mixed question कि उसमें motion भी हो deformation भी हो, they will not give you such type of question, okay. Either problem will be from mechanics or problem will be from strength of material. now कहाँ तक हुआ? rigid body, okay. So this is what, तो अभी देखो हमारी डेफिनेशन क्या है? What is our definition? Definition थी, it is the study of state of the rigid body under the application of external forces. तो ये अब अपना लास्ट कीवर्ड बचा है, एक्सटर्नल फोर्सेस, लास्ट कीवर्ड बचा हुआ है एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब फोर्स क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया कैसे जाता है। मैकेनिक्स में एक्सटर्नल फोर्स का स्टडी करना है और सोम में इंटरनल फोर्स का स्टडी करना है। सोम में जो यहाँ डिफॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रेस पढ़ते हो आप, स्ट्रेस का फॉर्मूला जैसे मैं ऐसे बना दूँ, एक सिंपल सी चीज़ देखो, आज की क्लास बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल है। मान लो ये एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, ठीक है, इस पर एक पी फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ए पॉइंट पर लगा हुआ है, ये बी पॉइंट रिजिड वाल में है, यहाँ मान लो ये मासलेस है, मासलेस बार है, ठीक है, और नेग्लेजिबल मास है। तो यहाँ पर जरा बताओ, इसमें डिफॉर्मेबल है, स्ट्रेस जनरेट करता है, स्ट्रेस कितना होता है बेटा? पी बाई ए होता है, ठीक है ना। तो ये पी जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? सोम में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? बताओ जरा। इस फॉर्मूले में द फोर्स पी इज एक्सटर्नल और इंटरनल? वी विल स्टडी इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वेरी मच डिटेल, बट अभी के लिए थोड़ा बताओ। हाँ, तो देखो दोनों आंसर मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग बोथ ऑप्शन, फ्यू आर सेइंग इंटरनल, फ्यू आर सेइंग एक्सटर्नल। सो एक्चुअली व्हाई दिस कंफ्यूजन इज देयर? एक्चुअली स्ट्रेस का ये फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। सो नाउ व्हेन यू विल ड्रॉ FBD of this body, only right part let's say, and here it will be P, and here internal resistive forces will be like this, many internal resistive forces will be there, F1 F2 like this, small forces, okay, like this, n number of forces will be there, and there will be resultant of all those forces that must be equal to P when body is in equilibrium. This bar will be in equilibrium, ठीक है। ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, इसका थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर दैट फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पी, एक पर्टिकुलर डेल्टा एल होगा, आफ्टर दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम और रेस्ट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये सिस्टम चला जाएगा, देन ओनली यू कैन डू द स्टडी के हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस।
जब तक वो इलोंगेट हो ही रहा है तब तक आप स्ट्रेस नहीं बता सकते, बिकॉज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज ऑल्सो कंटिन्यूसली चेंजिंग, यू कैन नॉट गिव एनी आंसर. So actually study is done only when it will reach in equilibrium condition. Equilibrium में ये होगा, so this F internal will be equal to this P force. This is actually external. So magnitude wise they will be equal. So magnitude wise they will be equal. So that's why this formula will become P by A. And generally we apply directly this. But actually this is not the definition of stress. बात को समझ रहे हैं. सो एक्चुअली अपना जो सोम है दैट इज स्टडी ऑफ इंटरनल फोर्सेस एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस मेनली. ओके, सो डन अप टू दिस. सो वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए रिजिड बॉडी एंड देन वी हैव टू चेक द स्टेट ऑफ द बॉडी. ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ने का. द पॉइंट. तो मैं इसे थोड़ा ऑर्डर में कर देता हूँ क्योंकि ये नोट्स आप यूज़ करेंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन बढ़िया बढ़िया प्रिंटिंग से भी अच्छा आपके लिए बना दिया जाए. मेहनत करो तो ऐसी करो कि शोर हो जाए हर जगह.